Hello student, so I am here to discuss life process chapter number 6, class 10 CBSE board. Student, I had explained to you before that what is metabolic reaction, what is biological reaction and what is life process. In second video we had discussed about the nutrition and mode of nutrition. If you have not seen these videos, so I will give the link in description box. Please go through with it first. After that everything will be clear to you whatever we are going to discuss here. So now I would like to tell you about the autotrophic mode of nutrition. As you know, according to name, auto means self and trophic means nourishment. It means the organisms, those are getting their nourishment by themselves, and these organisms are actually making food or the energy by themselves from the simple substances. It means they are taking simple substances from the atmosphere and doing some special type of reactions. Either they are producing energy or they are producing food. Okay, so these all are called the autotrophic mode of nutrition, and the organisms those are doing this type of activity, these are called the autotrophs. Okay, according to the production of food or the energy, means they are going to produce energy after the reaction or they are producing the food on the behalf of it. We will separate these into two categories. One is the chemoautotrophic, another is the phototrophic. Okay, in chemotrophic what will happen? Actually the organism are doing the exothermic reactions in the body of organism and then they produce energy. This energy they are storing in the body, and whatever the product of the reaction, it is the waste for the organisms, these are going to release it outside. And the energy which is producing during the reaction, it is going to store for the future purpose and it will utilize it for the various purposes of the life process. How it will develop the energy, let's see. Here hydrogen from the atmosphere organism is taking, CO2 from the atmosphere this organism is taking, and finally this chemical reaction takes place and CH4 and water get developed after the reaction as a product. As the reaction completes, then during the reaction the energy will also generate, and this liberated energy after the reaction, that's why this reaction is known as exothermic reaction. Okay, it's clear I think. So chemotrophic organism, chemotrophic mode of nutrition, in that the organism going exothermic reaction to produce their energy, storing energy and utilizing it for the various purpose. Now next is the if you want to ask the example of it, so here few bacteria are belongs, and these bacteria, suppose here hydrogen is taken by the bacteria for the reaction, so this bacteria name is the hydrogen bacteria. If suppose it is taking sulfur from the atmosphere, so it will be sulfur bacteria. According to it, various type of bacteria are there, those are doing this exothermic reaction and producing energy. Now come to the point, that is phototrophic mode of nutrition. As you know from the class 3rd, you are understanding the photosynthesis process is there by which organisms are producing food for themselves. Okay, so here same process is going on. Photo means light and trophic means nourishment. That means in presence of light the organisms are going to produce their nourishment. Without sunlight it is not possible. Without light it is not possible. Okay, so here of course there is the plant which belongs to this category. So the plant producing food by this simple substances in presence of food, and the process whatever they are utilizing, the process of course called photosynthesis. Okay, so the photosynthesis is there in the plants and in the cyanobacteria only. Okay, because these cyanobacteria and plants are having chlorophyll. You know, chlorophyll is the green pigment which is necessary for the photosynthesis process. Okay, so in the detail we are going to discuss about the photosynthesis process as it has given in the book. So let's start it. Here you are observing the photosynthesis definition. In the photosynthesis, what will happen? Actually, it is the physiochemical process in which
the organic substance formed, that is the carbohydrate or sugar, and it is also known as the C6H12O6. So by the different scales I am writing it. The C6H12O6. So let's understand it. Actually, it is the physiochemical process. Why it is a physiochemical? Actually, physically, plant leaf are going to trap this sunlight, and after that these are utilizing this sunlight energy for the production of food. So it is physiochemical process. So it is physiochemical process in which the organic substance form, that is the carbohydrate, sugar or glucose, are formed in the simple by the simple inorganic substances, and these simple inorganic substances are the CO2 and water. As the water, CO2 react together, then this C6H12O6, that is the carbohydrate, this product will form. But the condition is required here, that is sunlight and the chlorophyll. Okay, so how it will happen? With the help of reaction, understand. Actually, plant is taking this simple substance, that is inorganic substance CO2, from the outside of atmosphere, and it is taking the water from root. It is also found outside in the soil, and after this the reaction completes in presence of sunlight and in chlorophyll. That means chlorophyll substance is also required here. Okay, and finally this is going to produce the CH2O. This is the carbohydrate. Okay, likewise the oxygen is also reduced. Okay, now the question in your mind can be arise that ma'am has written here C6H12O6, but here the CH2O is there only. So is it the glucose? No, it is not glucose. Actually, it is the carbohydrate. So actually what happened in the plants, यही सेम रिएक्शन प्लांट के अंदर 6 बार होगी और 6 टाइम रिपीट होने के बाद ये फाइनली प्रोडक्ट आपका C6H12O6 बनेगा. होता क्या है, CO2 एटमॉस्फेयर से लिया और वाटर के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, एंड रिएक्शन होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट बन गया. ओके, यही रिएक्शन सेम टाइम 6 बार रिपीट होकर के आपका फाइनल प्रोडक्ट C6H12 बनाएगा. और फाइनल रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज दैट? इट इज द CO2 प्लस, that is 6 molecule of CO2 has taken in there, and 12 H2O in presence of sunlight in chlorophyll. The C6H12O6 plus O2, which is emit outside if it is extra, and few amount of oxygen plant is utilizing for the purpose of respiration, and 6 molecule H2O is also formed. Here the question is there, two places hydrogen this water molecule is there. What they are showing? Actually, for the balancing of the reaction, this all will happen. Okay, it means for balancing the this H2O is written here 12 amount, and after the reaction less amount of water is also get released by the plant. ओके, तो 6 बार ये रिएक्शन रिपीट होकर के, जो पहले वाली रिएक्शन मैंने बताई है, ये फर्स्ट रिएक्शन 6 टाइम होकर के फाइनल प्रोडक्ट आपका C6H12 जो कि आपके प्लांट का फूड है, ये डेवलप होगा. ओके, और फिर इसी फूड पर ऑक्सीडेशन करने के बाद प्लांट एनर्जी डेवलप करेगा और अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगा. ठीक है, यहाँ कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी यहाँ पे रिएक्शन के दौरान एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जबकि वहाँ रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है. तो वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
तो ये रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है. You know endothermic reaction are those are utilizing energy, and exothermic reactions are those are releasing energy after the reaction. Now step by step how this all will happen in the plant, so please understand this. So here, before we start the detail of photosynthesis step by step, I would like to tell you about some questions actually, because these questions may be asked from this area in the board. Here first question I had mentioned that where does photosynthesis takes place. You all know photosynthesis required chloroplast in green part of the plant, only photosynthesis takes place. So that's why the green part of the plant, that is like leaf or few green stems are there the photosynthesis takes place, because these all have the chloroplast, and you know in chloroplast pigment chlorophyll is there. Now next question, what is chlorophyll? So chlorophyll is a type of pigment that is present in the chloroplast, and it is important actually here for trapping of sunlight, and this sunlight will change into the chemical energy in the chloroplast, and this chemical energy is called ATP. It means the chlorophyll pigment traps sunlight and change this sunlight in the form of chemical energy, and this chemical energy plant is utilizing for the fixation of carbon dioxide into food. Okay, and this chemical energy is ATP. Next question is, what is the raw material of photosynthesis? So you all know the carbon dioxide and water is the raw material of the photosynthesis. Next is the source of energy for photosynthesis. The source of energy, as you know, the sunlight is trapping by chlorophyll, and this is going to change into the chemical energy that is utilizing for the purpose of fixing the carbon dioxide into the food. That means the sunlight is the source of energy. Next is the product of photosynthesis. You know the carbohydrate or the simple sugar, and this is also known as the C6H12O6. So this will be the product of the photosynthesis. Now one more point I has added here, that stored food of the plant is starch. Actually the simple sugar made by the photosynthesis process, but this simple sugar is not going to store in the plant. When the plant store this excess sugar, so this sugar will form first chemical bonding with the one simple sugar and another simple sugar, and finally it's make a long chain of the carbohydrate, and finally it is known as the starch. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच एक बॉन्डिंग होगी केमिकल, एंड फाइनली एक लॉन्ग चेन यहाँ पे बनेगी, ग्लूकोज 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 की लॉन्ग चेन यहाँ बनेगी, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टार्च. तो प्लांट में स्टोर्ड फूड स्टार्च है, जो प्लांट में जगह जगह स्टोर हो सकता है, या तो लीफ में या रूट में या स्टेम में या किसी भी फ्रूट प्लांट के. दूसरा पॉइंट है, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द photosynthesis. As you know, the photosynthesis process is there just to form the glucose, okay, but here sidewise the oxygen also liberated. So this oxygen is the byproduct of the photosynthesis. This oxygen plant are utilizing for the purpose of respiration, and if it is excess in amount, so it is going to release it outside, that present in atmosphere, and the organism those are respiring on oxygen like us, so we are using this oxygen. Okay, so remember here, before plant our atmosphere was not this oxidizing atmosphere. At that time जब सृष्टि का निर्माण हुआ पहले, सबसे पहले, तो उस समय ऑक्सीजन अवेलेबल फ्री फॉर्म में नहीं थी, तो उस समय हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में था, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन यू शुड नो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था हमारा. कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंस होगा, तो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में था ही नहीं. अब जब प्लांट सबसे पहले डेवलप हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज आर डूइंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड बाय दैट दिस आर रिलीजिंग ऑक्सीजन. और उस समय सरप्राइजिंग बात ये भी है कि उस समय ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए भी नहीं था,
यानी एरोबिक की बजाय एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे उस समय जब जिनको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए होगा। ओके, तो हम अगले टॉपिक में, रेस्पिरेशन टॉपिक में, इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एनारोबिक, उसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उस समय जब ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं थे तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जब ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्योंकि यूज करने वाले इतने थे नहीं ऑक्सीजन को, तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हुआ। अब पहली बात आई कि क्या प्लांट सीधे बने, फोटोसिंथेटिक प्लांट पहले बने या फिर कुछ और था? तो यहाँ पे पहले बने बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, और ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में साइनोबैक्टीरिया बेस्ट एग्जाम्पल होगा, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन डिपॉजिट हो गई, धीरे धीरे आपका ओजोन लेयर फॉर्म हो गया उसी ऑक्सीजन से, एंड फाइनली परफेक्ट एटमॉस्फेयर हुआ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो एडवांस्ड थे, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे, एंड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में डेवलप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्लांट्स। अब इसी बिहाफ पे हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का बेनिफिट है फूड प्रोडक्शन, पहला, एक तो फूड डेवलप कर दिया, दूसरा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डेवलप कर दिया, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये बेनिफिट हुई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है उसको बैलेंस भी कर देता है ये। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हमें दिखाई देते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो दिस टाइम आई एम ऑल्सो नीड टू से दैट वी शुड ओ फॉर प्लांट। ओके, next step by step we are going to discuss how this photosynthesis happen in the plant. Okay, one by one according to the step and the help of diagram in live example we are going to discuss about this photosynthesis process. Actually you are observing this leaf. This leaf is having two surfaces. One surface is this and another surface is this back to it. Okay, this actually present over the plant like this. Suppose this is the stem of plant and this is situated here. So the portion which is upward direction, that portion is called the ventral surface, and the portion which is towards the down, that portion is called dorsal surface. The upper and dorsal both surfaces, when you observe, so it is having the epithelial tissues, just like our skin. We have the skin cover of the body, same this is also having the cover of this body, that is called the epidermis. If we peel this epidermis by the turning this towards my direction and I will peel it, then I will get the epidermal area, and you will observe the epidermis is having tiny pores. These are called the stomata. You know what the stomata are? The stomata are the small pores present on the surface of leaf, either this side or this side, sometimes both directions. If suppose this plant is aquatic, so upper surface is having stomata. If suppose this is terrestrial, so maybe possible two surfaces are having stomata. Surfaces means epidermal tissues. Okay, अब यहाँ पे एक और ख़ास बात है, क्या कि you are observing this network like structure in the leaf. That means these all the vessels which is supplying water to the whole leaf. Okay, so this network is called venation of leaf. The leaf is having actually venation. If you are observing this leaf, so here in this leaf you are going to observe the venation. This is the midrib, and here many thread-like structures you are observing, and this thread-like structure exactly this type, and these all are the vein and veinlet. Okay, actually vein and veinlet are here to supply of water and minerals to all over the part of the body. क्यों मैं ये सब बता रही हूँ? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली कहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस टॉपिक आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप देखिए, इसको अगर मैं सेक्शन इस तरह से कट करती हूँ तो क्या मुझे दिखेगा? एक बाहर ये एपिडर्मिस है, एक ये एपिडर्मिस है। इतनी स्मॉल सी लीफ के अंदर भी कुछ टिश्यूज़ हैं, उनको क्या कहते हैं? लेट्स सी द डायग्राम।
देखिए अगर मैं इस लीफ को इस तरह से सेक्शन कट कर देती हूँ तो टीएस कहते हैं इस सेक्शन को। टीएस मीन्स ट्रांसफर सेक्शन। व्हाट स्ट्रक्चर यू विल गेट आफ्टर दैट, तो ये मिलेगा, है ना। इस स्ट्रक्चर में आपको दो एपिडर्मिस मिलेंगी, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस ऑफ कोर्स आपको अपर साइड में मिलेंगी यानी वेंट्रल साइड में, और लोअर एपिडर्मिस आपको मिलेगी डॉर्सल साइड में, लीफ के डॉर्सल साइड में। जो डाउनवर्ड होगा वो डॉर्सल है, जो अपवर्ड है, जो सन की डायरेक्शन में है, वो वेंट्रल है। तो वेंट्रल हमेशा सन की तरफ फेस करेगा, इसका मतलब है ज़्यादा क्लोरोफिल यहाँ होना चाहिए और ट्रैप करे और फिर उसके बाकी का एक्ट ये परफॉर्म करेगा। लेट्स सी दिस डायग्राम नाउ। द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, बोथ डर्मिस आर हेयर। और डर्मिस में छोटे छोटे पोर्स मैंने दिखाए हैं, यही स्टोमेटाज हैं, यानी ये जो पोर हैं ये स्टोमेटा हैं। अब आपको पता है स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन जो कुछ भी ज्यादा अमाउंट में है दैट कैन बी रिलीज आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा, और जो CO2 की रिक्वायरमेंट प्लांट को है वो इन्हीं स्टोमेटा से फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी टिश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज टिश्यूज आर कॉल्ड मीजोफिल टिश्यूज, ओके। अब मीजोफिल टिश्यूज में जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये है क्लोरोफिल, है ना। तो यहाँ पर क्लोरोफिल में ये एक्ट यानी फोटोसिंथेसिस होने वाला है, ठीक है। तो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स में ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। लेट्स सी, ये जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, यू नो। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है तो उसको मैंने बाहर एक्सप्लेन किया। ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन पिगमेंट जहाँ पर होता है क्लोरोफिल, ये वो पोर्शंस हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो एक सेल में लीफ के एक सेल में, ध्यान दीजिए, लीफ के एक सेल में करीबन 80 से 90 तक ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो सोचो एक ही सेल कितने अमाउंट में फूड प्रिपेयर कर सकता है, जबकि लीफ के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और हर सेल के अंदर 80 to 90 स्टोमेटाज आर देयर, सो इट्स एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड अमाउंट ऑफ फूड हेयर, ओके। तो अब नेक्स्ट मैंने एक कनेक्शन बताया है कि कैसे यहाँ पे वाटर सप्लाई होगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई, अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे रूट सिस्टम है, देखिए जो सॉइल के ये सपोज सॉइल सरफेस है, तो जो सिस्टम सॉइल के अंदर है दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, और जो सॉइल से अपर है दैट इज कॉल्ड स्टेम, है ना। तो रूट जो है वो सॉइल में मर्ज है। सॉइल के अंदर ये रेड रेड पार्टिकल्स जो दिखा रखे हैं दिस आर वाटर, ओके। अब ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया एंड थ्रो जाइलम, स्टेम इस वाटर को लेके गया लीफ के पास। एग्जैक्टली लीफ को जरूरत थी वाटर की फोटोसिंथेसिस के लिए, तो लीफ को वाटर सप्लाई कर दिया गया, और लीफ को वाटर सप्लाई करने के लिए ही ये वेनेशन की जरूरत थी, ठीक है। तो ये वेनेशन आपके प्लांट की स्टेम के साथ कनेक्ट है, स्टेम रूट के साथ कनेक्ट है। पहले रूट में वाटर एंट्री हुआ, फिर स्टेम में हुआ, एंड फाइनली इस मिड रिब से पूरे सिस्टम में, ये पूरे लीफ में वाटर का सप्लाई हो गया। अब आपकी लीफ वाटर रिच हो गई, वाटर पहुंच गया यहाँ पे। स्टोमेटा ओपन हुए, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हो सकती है स्टोमेटा की। एज द स्टोमेटा ओपन देन द CO2 विच इज आउटसाइड गेट इनसाइड इन द लीफ। अब दोनों चीजें यहाँ प्रेजेंट है, वाटर अवेलेबल है और CO2 अवेलेबल है, तो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब कैसे होगी वो यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, सपोज यहाँ आउटसाइड सनरेज प्रेजेंट है, सन रेज इज अवेलेबल हियर। अब सन रेज फॉल हो रही है, ऐसा कभी नहीं देखा कि डाउन में सन रेज है, पर डायग्राम ऐसा बनाए तो ऐसा समझ लीजिए कि सन यहाँ है और यहाँ से फॉल हो रहा है। ये सन रेज मैंने इसके लिए बनाया, ठीक है। अब समझिए इसको, यहाँ से सन रेज पूरी लीफ सरफेस पर फॉल हुई, लीफ में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पर भी सनरेज फॉल होंगी। एज यू नो सनरेज इज हैविंग सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो इस लाइट एनर्जी को आपका क्लोरोफिल जो इस सेगमेंट में है, क्लोरोफिल इसी को सनरेज को ट्रैप कर लेगा, ओके। और ट्रैपिंग के बाद ये जो क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, उस ट्रैपिंग के बाद इसे कन्वर्ट कर देगा एक केमिकल प्रोडक्ट में जिसका नाम है ATP, ठीक है। ATP यहाँ अब इस क्लोरोफिल से डेवलप हो गया। इसका मतलब है जो सनलाइट इस पे रेज हुई वो क्लोरोफिल ने ट्रैप की, और
क्लोरोफिल ने उसे एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट वाटर है, क्या सनलाइट उस पे नहीं फॉल होगी? अगर क्लोरोफिल पे फॉल होगी तो सनलाइट वाटर पे भी फॉल होगी, जो इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो इस पर जब सनलाइट फॉल होगी तो उस रेडिएशन की हेल्प से ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी वाटर यहाँ पे लाइट की वजह से, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और क्या बना देगा, यहाँ H2 एंड O2 यहाँ जनरेट कर देगा। बेटा यही O2, क्योंकि देखिए ये जो क्लोरोफिल है ना, ये लीफ में प्रेजेंट है ना, तो बन कहाँ रहा है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बन रहा है यहाँ क्लोरोफिल के अंदर, है ना, और क्योंकि जो लीफ के अंदर है तो ऑफ कोर्स लीफ ही इस ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करेंगे अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा। यहाँ पे खुद भी रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा और रेस्ट ऑफ जो भी यहाँ ऑक्सीजन होगा उसको ये बाहर रिलीज कर देगा थ्रू स्टोमेटा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। एक और क्वेश्चन यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, इसका सोर्स क्या है? तो उसमें ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है CO2 एंड ग्लूकोज और वाटर और नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा वाटर, क्योंकि आप देख रहे हैं वाटर स्प्लिट हो रहा है, तभी वाटर के स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेवलप हो रहा है। अब एक और बस पॉइंट रह गया यहाँ कंप्लीट होने में और ये टॉपिक कंप्लीट है। देखिए अब ये सब कुछ लीफ के अंदर है, लीफ में स्टोमेटा है, तो लीफ से स्टोमेटा से यहाँ CO2 एंटर हो जाएगा। इसका मतलब है CO2 भी यहीं आ गया CO2 भी यहीं आ गया। ठीक है, अब बस CO2 का इस वाटर का ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डेवलप हुआ है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन इस CO2 के साथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP करके हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन ऑफ CO2। यानी ये जो CO2 है, ये CO2 वाटर के इस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होगा और इस जगह ये जो ATP प्रोड्यूस हुआ है, ये एनर्जी यूटिलाइज होगी इसके कॉम्बिनेशन कराने के लिए। ठीक है, यानी CO2 का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के साथ ATP की वजह से होगा, क्योंकि ATP एक एनर्जी है, तो एनर्जी के बिना कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो नहीं सकती। यही ATP इस CO2 और हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल को कंबाइन कराने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। एंड फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट CH2O डेवलप हो जाएगा। और ये सेम रिएक्शन आपके इस जगह 6 बार होगी, सेम रिएक्शन 6 टाइम रिपीट होगी। एंड फिर उसके बाद जब ये 6 टाइम रिपीट्स ये रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज वो जनरेट हो जाएगा। आई होप ये डायग्रामेटिक आपको ऑब्जर्वेशन सारे समझ में आ गए। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमारी NCERT बुक में दिया है कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स अंडरस्टैंड इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल इवेंट आई हैव डिस्कस्ड हियर विद द डायग्राम, with the help of diagram. Now understand here. First of all, the absorption of sunlight by chlorophyll takes place. Conversion of this light energy, because sunlight is having light energy. Okay, so after absorption of this sunlight by chlorophyll, this sunlight is going to change itself as a chemical energy by the chlorophyll. यानी यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद इसमें इतनी एबिलिटी है कि इस सनलाइट की एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। और केमिकल एनर्जी है क्या इसके लिए? केमिकल एनर्जी ATP है। तो यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल ने चेंज कर दिया और क्लोरोफिल ने ही सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एंड थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको मैंने कहा था दिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटोलाइसिस 2 चीजें हो रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ATP में चेंज करना और साथ उसके वाटर स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे इसी स्टेप में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज देयर। ओके, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल CO2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। तो लास्ट टॉपिक इज
द रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एडिशन हो गया हाइड्रोजन का CO2 के साथ। इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद CO2 इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हाइड्रोजन का एडिशन क्यों हुआ है? ऑफ कोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और 6 बार ये रिपीट हुई रिएक्शन तब जाकर के C6H12O6 डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे है जो बुक में नहीं दिया है। देखिए, ये दो जो स्टेप्स हैं, इवेंट हैं, ये दोनों इवेंट कौन सी? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड दिस चेंज दिस सनलाइट इनटू ATP, और दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या ये सनलाइट के बिना पॉसिबल है? तो आंसर होगा नो, यानी ये सनलाइट में होगा। और ये जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ये आपका डार्क में भी हो सकता है, इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको प्रोडक्ट ऑफ लाइट जो है उनकी ज़रूरत है। जैसे जो अगर मैं इस रिएक्शन इन पूरे इवेंट्स को 2 ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दूं तो होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपके 2 टाइप की रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। पहली रिएक्शंस जो 2 हैं, पहले इवेंट जो 2 हैं जिसमें एक्चुअली लाइट की ज़रूरत होती है, ये इवेंट हमारे लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। एंड जिस इवेंट में सनलाइट की ज़रूरत नहीं है वो इवेंट हमारी डार्क रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हायर क्लासेस में थोड़ा सा एडवांस आप पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं डिफरेंट बुक्स से पढ़ते हैं, तो दे आर हैविंग दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन देयर माइंड। फॉर देम आई एम टेलिंग दिस दैट photosynthesis reactions are complete in 2 mode. One is dark reaction, another is light reaction. Light reaction has complete in the presence of sunlight, and the dark reaction may complete in sunlight or in absence of sunlight, यानी इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो डार्क रिएक्शन हो सकती है, लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए हमेशा सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 इवेंट जो हैं, एब्जॉर्प्शन सनलाइट एंड कन्वर्जन एक इनटू ATP एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये दोनों आपके लाइट रिएक्शन के पार्ट हैं, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट है। आई होप ऑल पॉइंट इज क्लियर इन दिस वीडियो रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। अभी भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ में आया है कोई टॉपिक, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा कर के या पर्सनली मेरे ईमेल आईडी पर आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ओके।